بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات سیاسی صورتحال ان کو بالکل مصنوعی طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. طاقت کے زور پر غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر جمہوری طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ جعلی نظام جو ہے یہ کنٹرول میں آ جائے اور اس جعلی نظام کو جواز مل سکے اور اس اقتدار کو جو کہ ناجائز اقتدار ہے اس کو طوالت دی جا سکے. لیکن اس میں ابھی کامیابیاں نہیں ہو رہی اور آئین کو بھی توڑا جا رہا ہے اور مسلسل توڑا جا رہا ہے. اور کچھ منافقتیں، دوغلے پن، ڈبل سٹینڈرڈز پولیٹیکل پارٹیز کے، پولیٹیکل لیڈرز کے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. بظاہر کہا جاتا ہے کہ ہم ڈیموکریٹک ہیں، ہم بالکل آئین کی پابندی کرتے ہیں، آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، پارلیمان کی بالادستی چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت اقتدار کے نشے میں ایسے یہ بے وقوف ہوئے ہیں کہ کچھ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کیا قانون سازی کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. ابھی سپریم کورٹ کے فیصلہ اس پہ عمل درآمد ہونا ہے اور مخصوص نشستوں کے والے معاملے میں، اور وہ ڈیٹ گزر چکی ہے اور آخری ڈیٹ پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ دوبارہ سے جو ان کا نیکسس ہے الیکشن کمیشن کا اور سہولت کاروں کا اور خاص طور پہ یہ جو ناجائز حکمران ہیں اس وقت، ان کا نیکسس ایک بار پھر ان کا گٹ چوٹ سامنے آ چکا ہے. اور قاضی صاحب جو ہیں وہ بالکل مسلسل وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور بہت اچھا تبصرہ کیا متی اللہ جان نے کہ صدر مملکت کو چاہیے کہ صدر مملکت زرداری صاحب کو چاہیے کہ قاضی صاحب کو بلائیں اور ان کو 3 سال کی ایڈوانس تنخواہ دے دیں اور اس کے کہیں لو جناب ہماری جان چھوڑیں، بلکہ جو جو ایکسٹینشن کی خواہش رکھتا ہے اس کو مراعات دے دی جائیں اور مراعات دے کر اور ان کو فارغ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا. اور کیونکہ ان کی جو ہے وہ حیثیت یہی ہے کہ بس تنخواہ اور مراعات ملتی جائیں، قومی خزانے سے ان کو رقوم ملتی جائیں اور یہ سب کچھ ہوتا رہے. بہرحال جی صورتحال یہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی جو کہ کہتی تھی کہ جی ہم ڈیموکریٹک ہیں، آج ان کا بالکل انہوں نے مہر لگا دی، بلکہ ریکارڈ پہ آ گیا ان کا سارے کا سارا کچا چھٹا مخصوص نشستوں والا کیس. اور اس کو جس طریقے سے قانون سازی کی گئی اس کو انڈو کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو سکے مخصوص نشستوں کے معاملے میں، تو ایک قانون پاس کیا گیا اور قانون سازی کی گئی. اور اس قانون سازی کا اطلاق جو ہے بل کا، قانون کا، وہ ہوگا 2017 سے، یعنی کہ 7 سال پہلے سے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور انہوں نے یہ واضح طور پر کہہ دیا، فل کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو جائیں گی اور جو آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے تھے ان کو پاکستان تحریک انصاف کا کنسیڈر کیا جائے گا اور ان کو ڈکلیئر کیا جائے گا. اور اگر یہ کام ہو جاتا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہو جاتا ہے، تو از خود ہی یہ جو خرابیاں ہوئی ہیں، یہ جو فارم 47 تقسیم ہوئے ہیں، وہ واپسی شروع ہو جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی جماعت، سب سے بڑی پارلیمانی جماعت دھاندلی کے باوجود ابھرے گی اور پارلیمان میں، قومی اسمبلی میں اس کا وجود ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستیں آئیں گی، پھر فارم 47 کا جو ہے وہ ریورس شروع ہو جائے گا، اس کا ریورسل ہوگا اور فارم 47 جعلی فارم 47 واپس جائیں گے، اصلی والے واپس آئیں گے. تو یہ کوئی 50-55 سیٹیں ہیں مجموعی طور پر صرف قومی اسمبلی کی، وہ ساری آنی ہیں. تو یہ سارے کا سارا نظام جو ہے سپریم کورٹ نے ان کو ایک آئینی اور قانونی راستہ دیا، ایک محفوظ راستہ دیا، اور محفوظ راستے کے ذریعے یہ جو کھلواڑ کھیلا گیا 8 فروری کو آرٹیکل 6 کی عملی مظاہرہ کیا گیا اور پورے کا پورا الیکشن چوری کیا گیا جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، وہ سارے کا سارا جو کیا گیا وہ سب چیزیں سامنے آ گئیں. اور اب سپریم کورٹ نے ایک محفوظ راستہ دیا تھا، لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ یہ محفوظ راستہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ چاہتے یہ ہیں کہ سپریم کورٹ سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ ان کا پھڈا ہو، وہ آپس میں ٹکرائیں اور سپریم کورٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ آپس میں ٹکرائیں گے تو اس کا نتیجہ ان کو نکلے گا، فائدہ ان کو پہنچے گا، ناجائز حکمرانوں کو، کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ مارشل لا لگ جائے، ایمرجنسی لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے، فوج خود آ جائے اور ہمیں کم از کم، ہم اگر گھر جاتے ہیں تو ہمارے بعد عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف یا عوام کی حقیقی منتخب نمائندے نہ آئیں. یہ ان کا پلان ہے جو کہ کیا جا رہا ہے اور ان کو الٹے سیدھے مشورے دینے والے بھی یہی لوگ ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. تو اس لیے آج صدر مملکت نے اس قانون کی منظوری دے دی، ایکٹ کی منظوری دے دی، ترمیمی بل 2024 کی، اور اس طریقے سے سینٹ اور قومی اسمبلی نے یہ بل پاس کر دیا اور 2024 فوری طور پہ نافذ العمل ہوگا. اور بل کے تحت الیکشن کے بعد 3 دن میں کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے والا کسی رکن
किसी दूसरी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी करने की कोशिश की गई है और ये 2017 से 7 साल पहले से इस पर अमल दरामद होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारे का सारा कच्चा छठा जो है ये बदनीयती पर मबनी है और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को डिस्ग्रेस करने की कोशिश की गई है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, दोबारा जाएगा और इसको चैलेंज कर दिया जाएगा इसी एक्ट को, और हो सकता है आजकल में चैलेंज कर दिया जाए अगेन, ये फुल कोर्ट के पास ही जाएगा, क्योंकि अब जजेस कमेटी जो है उसमें काजी साहब जो हैं वो बिल्कुल एक नॉन फंक्शनल एंटिटी बन चुके हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो जजिस कमेटी में उनकी मेजॉरिटी है, और काजी साहब जो करना चाह रहे थे और मिली भगत करके रावलपिंडी के साथ मिलके, जाती उमरा के साथ मिलके और इन सब से मिलके जो करना चाह रहे थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने खुश कर दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की फांसी वाली सजा फैसले को उन्होंने कह दिया कि ये फैसला दुरुस्त नहीं था, वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन काजी साहब ने इसके पॉलिटिकल मोटिव्स थे वो हासिल कर लिए। लिहाजा अब वो दोनों पार्टियों को खुश कर चुके हैं और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट तो चाहती ये है, मिलिट्री लीडरशिप जो है कि काजी साहब कंटिन्यू करें और ये सारा जो 8 फरवरी को जो खेल खेला गया और खासकर 9 मई के बाद जो कुछ हुआ उसको किसी भी तरीके से जवाब मिल सके, पार्लियामान से मुहर लगवाई जा सके, क्योंकि बहुत सारे गैर आइनी गैर कानूनी काम किए गए हैं जब से ये रजीम चेंज हुआ है उस वक्त से लेके आज तक गैर आइनी काम हो रहे हैं, आइन को तोड़ा जा रहा है। 90 दिन के इलेक्शन करवाने थे वो नहीं करवाए गए, पंजाब असम्बली का इलेक्शन था, खैबर पख्तूनख्वा का था, कौमी असम्बली का था, फिर बाकी दोस्तों असम्बलियों का था, ये सारा कुछ और फिर इलेक्शन चोरी। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं जी, अब कानून साजी आ चुकी है और अब दोबारा मैदान सजेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन काजी साहब जो हैं वो उनके पल्ले कुछ नहीं रहा और वो बिल्कुल एक आप यूँ समझें कि बिल्कुल फारग हो चुके हैं, लेकिन साजिशों के ताने बाने वो बुनते रहेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मामला वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अजहर मिशवानी साहब के 2 भाइयों के लापता जो हुए हैं उनकी दरख्वास्त दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है और कहा गया कि जी इन भाइयों को बाजियाब करवाया जाए। सीटीडी की वर्दी और सिविल कपड़ों में इंटेलिजेंस अफसरान ने मेरे बेटे को हिरासत में लिया और अजहर मिशवानी के भाई उठाए जाने पर लाहौर हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर की और लाहौर हाई कोर्ट ने 6 जून से 2 अगस्त तक मुतअद्दिद बार डायरेक्शन जारी की। इंटेलिजेंस एजेंसी के नुमाइंदे ने इस्लामाबाद से अजहर मिशवानी से बरतानिया में रब्ता किया और अजहर मिशवानी से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और इंतखाबी धांधलियों से मुतल्लिक ट्वीट डिलीट करने का कहा। अजहर मिशवानी को बताया गया तुम्हारे भाई इस्लामाबाद में एजेंसी के पास हैं। अजहर मिशवानी को यह भी बताया गया क्या कि लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त वापस ले ली। अजहर मिशवानी के भाइयों को बाजियाब करवाकर अदालत में पेश करने की हिदायत की जाए, ये इस्तदा की गई है, क्योंकि अजहर मिशवानी साहब के जो भाई हैं उनके बाद ISI या IMI जो भी थे उन्होंने रब्ता किया था अजहर मिशवानी साहब से UK में कि आप अपने ट्वीट डिलीट करें और उसके बाद अगर आपने जो बरतानवी पार्लियामेंट में एक एक्टिविटी थी जुल्फिकार बुखारी साहब ने अरेंज की थी, अगर आप उसमें गए तो उसके बाद फिर आपके वालिद साहब भी उठा लिए जाएंगे, तो वो फिर नहीं जा सके थे। तो ये अब ऐसी चीज़ नहीं है कि बराह रास्त कोई बात ना हो, तो सबको पता है। दूसरी जानिब भी काजी साहब का मामला अगेन चीफ जस्टिस साहब जो हैं सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ सुप्रीम प्रेस एसोसिएशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद पुलिस ने सहाफ़ियों पर हमलों की तहकीकाती रिपोर्ट जमा करा दी और प्रेस एसोसिएशन के वकील थे बैरिस्टर सलाहुद्दीन, वो वीडियो लिंक पर आए हुए थे और उन्होंने कहा कि जी मुझे पुलिस रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी गई इसलिए हम जायज़ा नहीं ले सके। तो काजी साहब ने कहा कि कॉपी खुद लेनी होती है, हाई कोर्ट की तरह सप्लाई नहीं की जाती और सुप्रीम कोर्ट की बैरिस्टर सलाहुद्दीन को पुलिस रिपोर्ट का जायजा लेने की हिदायत की गई और साथ ही उन्होंने कहा जी आज वक्त कम है क्योंकि शरीयत बेंच ने बैठना है, इसलिए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। तो ये काजी साहब का ही एटीट्यूड है कि मीडिया पे हमले किए जा रहे हैं तहकीक का और उस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। ये है काजी साहब का असल में रवैया, बिहेवियर है। वो ऐसे मुकदमात को जो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतालिक हैं, शहरी आज़ादियों से मुतालिक हैं, मीडिया की आज़ादी से मुतालिक हैं, अदलिया की आज़ादी से मुतालिक हैं, उनको वो कोई अहमियत नहीं दे रहे। और इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब के ने मुकदमा दायर किया जी और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
रहनुमा हैं उन पे मुकदमे में फर्द जुर्म जो की गई है उसको चैलेंज किया गया है। और लाहौर में थाना शादमा जलाओ घिराव ट्रायल केस की समाअत में ये काम किया गया और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने कोर्ट लखपत में ये समाअत की थी। और उन्होंने बताया, वकील ने बताया कि जी हमें बताया जाए कि इल्जामात क्या हैं और 2 पुलिस एहलकारों के बयान पर पंजाब में 45 मुकदमे दर्ज हुए। 9 मई के हवाले से बात हो रही है और इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, मियां महमूद रशीद हैं। ये सारे के सारे उनकी हाजिरी भी लगवाई और पुलिस ने केस में नए मुल्जमान का ज़िमनी चालान भी पेश किया। अब आते हैं जनाब सूरत हाल कल जो इमरान खान साहब से मुताल्लिक कि जी उन्होंने माफ़ी की बातें कर रहे थे, तो अब गवर्नमेंट जो है वो इसको मुस्लिम लीग नवाज वो ले रही है अपने जिम्मे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को और अब वो तस्लीम कर रही है कि इमरान खान साहब को हमने गिरफ्तार करवाया था। और जबकि इमरान खान साहब जो हैं वो भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान को किसने उठवाया था और किसने उठाया था, ये भी सारा पता है। तो लिहाजा जो जावेद लतीफ़ साहब हैं कल वो आए हैं और उन्होंने कहा कि 9 मई को हमसे ये गलती हुई तो इमरान खान को अहाता अदालत से गिरफ्तार कराया। तो ये तस्लीम कर लिया गया कि अहाता अदालत से उनको उठवाया गया था। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक मुस्लिम लीग नवाज के इंतहाई सीनियर रहनुमा और उस वक्त काबीना के रुकन जो जावेद लतीफ़ साहब हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हमने उठवाया था। हालांकि ये सबको पता है और अब ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। उसकी वजह यह है कि इनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि इतना ये रद्द अमल आएगा और ये मामला यहाँ तक बिगड़ जाएगा कि इसको संभाला नहीं जा सकेगा। उसकी वजह यह है कि इनका ख्याल था कि जनाब जैसे माजी में हम जो गुंडागर्दी करते रहे हैं वो अभी भी गुंडागर्दी चलेगी, लेकिन इस बार शायद गुंडागर्दी पाकिस्तान की आवाम ने कबूल नहीं की और इसीलिए इनको अब परेशानी लाहक है। एक और केस था जी बुशरा बीबी को इद्दत केस में बर्रियत के बावजूद रिहा न करने पर सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत हुई है आज और ये जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने इस पे की है समाअत। बुशरा बीबी को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार न करने के बारे में भी एक रजू की गई है दरख्वास्त और उसमें जस्टिस अरबाब ताहिर ने समाअत की है और नोटिस जारी कर दिए 12 अगस्त के लिए और अदालत ने सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब और आईजी जेल खाना जात को नोटिस जारी किए हैं और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को भी नोटिस जारी कर दिए हैं और चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास इसी नौयत के केस की साथ यकजा करने की भी हिदायत कर दी गई है। और सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के मतहत है और रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया और सुप्रीटेंडेंट के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त कैसे दायर हो सकती है, ये एतराज़ात थे। तो एतराज़ात दूर कर दिए गए हैं और एतराज़ात दूर करके जो है वो समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। तो ये सूरत हाल चल रही है जनाब। काजी साहब जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और वो इस तरह से काम कर रहे हैं और वो मुकम्मल तौर पर इस जाली निज़ाम को बचाने के लिए फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि तारीख उनको बहुत अच्छे अल्फाज में याद करेगी क्योंकि उन्होंने रिटायर्ड तो होना है और इस बात का बहुत इम्कान कम है कि उनको एक्सटेंशन मिल सकेगी। बहुत नामुमकिनात में से एक मामला है जो कि ये होगा। तो अब तक के लिए जी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।